हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे काफी दिन बाद मिल रहा हूं बिकॉज ऑफ आई हैव सम वर्क। बट स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लाता रहूंगा और आप अपनी स्टडी को इसी तरह से कंप्लीट करते रहें स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं, ये क्लास 9 का आपका लास्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज v equals to u plus at. Second one is S equals to ut plus half at square, and third one is v square equals to u square plus 2as, where u is what? Initial velocity. V is what? Final velocity. A is what? Acceleration. And S is a displacement. What? S is a displacement. These are vectors. So students, how can we prove this equation? आइए देखते हैं। Firstly, we consider the graph. This is time, this is velocity. There is a particle move like this. Initial velocity is u and final velocity is v. Okay, so this is A, B, C, D and E. Okay, this is final velocity v, this is initial u, and this becomes, students, v minus u, v minus u. Okay, after that, acceleration is what? This slope is acceleration. In previous video lectures we clearly studied about that. So acceleration is this upon this, means BC upon AB. So BC is what? V minus u, and AB is what? This is time, so here we use t. After solve this becomes V minus u equals to at, and V equals to u plus at. That's the equation of motion first, hence proved. And second equation, this one, V equals to u plus at. Okay, students, in previous video lectures we studied about the displacement and distance is area covered in the graph. So area covered in the graph is ADEC is what? Trapezium. So displacement or distance is what? Area of displacement is what? Area of trapezium, area of trapezium, ADEC, ADEC. Okay, so trapezium consists of two figures. This is rectangle, this is triangle. So area of rectangle is what? Length into breadth. Length means this one is time t, so here we use t. Okay, this is breadth means u, here we use u. Okay, and this is a triangle. Area of triangle is what? Half base into height. Okay, half base is what? T. Very good. Height is what? V minus u. V minus u. Very nice. So
After solving that, this becomes ut plus half t, and v minus u from equation first is what? V minus u equals to at. So from equation first, here we put the value of v minus u. So this becomes ut plus half at square. ये क्या है आपका? Hence proved equation number 2. So third one is v square plus u square plus 2s. Put the value of a. Put the value of t from equation 1. Equation is what? V equals to u plus at. So t is what? T equals to v minus u upon a. This value put in equation 2. Then this becomes v square equals to u square plus 2as. इसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स. आफ्टर पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकेंड, the final result is v square equals to u square plus 2as. Hence proof. इस तरह से हम तीनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स प्रूव कर देंगे. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने मोशन ऑफ इक्वेशन को प्रूव किया. अब एक प्रॉब्लम देखते हैं. एक छोटी सी जनरल प्रॉब्लम लेते हैं कि a particle initially in rest, then after moves with acceleration 10 meter per second square. Find distance. What distance? First is 4 second, second 5th second, 5 second, and third one is 5th second. ओके, आइए देखते हैं. पार्टिकल है इनिशियली इन रेस्ट, मींस क्या हुआ? u is 0. ओके, एंड a equals to what? 10 meter per second square. ओके, देन डिस्टेंस क्या होता है आपका? s equals to ut plus half at square. So put the value of u and a, then this becomes 0 plus half, a is 10, t is 4, square means 4 into 4, 2 2 ja 4, this becomes 80 meter. Particle travel in 4 seconds, what distance? 80 meter. Okay. After that, in 5 seconds, what distance covered by the particle? Okay, s equals to ut means 0, done, plus half at square, 10, 5 into 5, 125 meter distance covered by particle in 5 seconds. Then after distance covered in 5th second, देखिए there are major difference between 5 second and 5th second. We take real life example. Suppose this is a particle move in 4 seconds
80 meter. Very good. And particle move in 5 seconds is 125 meter. Okay. Then fifth second means this distance is what? कि पार्टिकल ने 5वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, व्हाट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 5th सेकंड, दिस वन. सो दिस वन इज व्हाट? दिस माइनस दिस मींस 125 minus 80, this become 45 मीटर. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम मोशन ऑफ इक्वेशन को यूज करके बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो इसके बाद स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इसमें बचा हुआ है, जो कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं. वो क्या है आपका, ये देखते हैं. मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी स्टूडेंट्स क्या है कि कोई बॉडी मूव करती है, वो चाहे ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, वो राइट साइड में जाए, वो लेफ्ट साइड में जाए, हर डायरेक्शन में कहीं भी जाए, बट उस पर जो ग्रेविटी लगती है वो ऑलवेज भी कांस्टेंट होती है, जिसे हम क्या लेते हैं, या तो वी टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये वैल्यू वेरी करती है डिफरेंट प्लेसेस पे, बट वी यूज ओनली 9.8 एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन आवर एनालिसिस. ओके स्टूडेंट्स. सो फर्स्टली वी टेक एग्जांपल. सपोज करें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आई हैव अ बॉल. मैंने एक बॉल को इस तरह से ड्रॉप आउट किया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो बॉल यहाँ पे ग्राउंड पे आ गया इस तरह से. इनिशियली जब बॉल मेरे हैंड में यहां थी, दिस इज 0 वेलोसिटी, और यहां फाइनल कुछ वेलोसिटी इसकी होगी. अब स्टूडेंट्स इसे क्या कहते हैं, इट्स अ फ्री फॉल. इसे हम क्या कह सकते हैं कि फ्रीली फॉल कर रहा है. तो इस कंडीशन में बिल्कुल बी फ्रैंकली याद रखें, यू ऑलवेज बी निगेटिव, V always be negative, S always be negative. Okay, but in other hand, if ball moves down to upward direction like this, so what happened? There are some velocity in initial way and फाइनल वेलोसिटी 0, बिकॉज एक लास्ट पीक पॉइंट स्टूडेंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बॉल रुक जाएगी, वहां पे बिल्कुल 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स. सो एट दैट कंडीशन u इज पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव एंड s इज पॉजिटिव. डन. अब स्टूडेंट g की वैल्यू क्या होगी? g body move upward to downward, g always be in downward. Body moves down to upward, but g always be in downward. So g is always be negative. G always be negative. Okay. So students, we use these fundamentals in our motion of equation. First, v equals to u plus at. Put the values minus v, minus u. In the place of a we use minus g and t. Okay. After solve this become v equal to u plus gt. Equation first under gravity. Similarly, second, s equals to ut plus half gt square. This is second equation under gravity. And third one is v square equals to u square plus
2gs. This is third equation of motion in under gravity. But students, if we talk about in upward direction, then the symbol of this is change. अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये वैल्यूज पुट करके स्टैंडर्ड इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, दिस बिकम्स एट दैट कंडीशन v इक्वल्स टू u माइनस जी टी प्लस जहां वहां पे आपका माइनस आ जाएगा, देन s डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अगर आप इसको चेक करना है तो आप इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, यही आएगा आपका डायरेक्टली. लास्ट वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gs. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया आपके पास इक्वेशन अंडर ग्रेविटी. दिस इज फ्री फॉल बॉडी, दिस इज डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउन टू अपवर्ड. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इसे मोशन अंडर ग्रेविटी में सॉल्व कर सकते हैं. अब स्टूडेंट इसमें एक देख लेते हैं ग्राफ. ग्राफ तो शायद आप लोग बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, बहुत आराम से ग्राफ बनाते होंगे. अब अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज टाइम t एंड दिस इज एक्सेलरेशन, सो मोशन अंडर ग्रेविटी में g इज कांस्टेंट, सपोज 10. सो टाइम इज इंक्रीज बट g इज ऑलवेज बी कांस्टेंट. इन व्हाट कंडीशन, मोशन अंडर ग्रेविटी. सो ये क्या है आपका ग्राफ है टाइम एंड एक्सेलरेशन का. सेकेंड, टाइम एंड वेलोसिटी, v इक्वल्स टू u, फ्री फॉल बॉडी की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त, v इक्वल्स टू u प्लस gt. फ्री फॉल बॉडी में क्या होता है, इनिशियली u 0 होता है स्टूडेंट्स, तो v equals to what, gt, g is constant, so we can say that p is directly proportional to t. It means that time जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वेलोसिटी भी आपकी इंक्रीज करेगी. कुछ इस तरह से आपका ग्राफ ये बन जाएगा. अब अगर मैं बात करूं लास्ट आपका ग्राफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करूं या डिस्टेंस की बात करूं, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वेशन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. u is 0, then s becomes half gt square. So g is constant students, s is directly proportional to t square. So this is a equation of parabola. ये आप आगे जब 10th 11th में जाएंगे तो बहुत ही डीपली इसको आपको बताया जाएगा. तो ग्राफ जो होगा पैराबोला का वो इस तरह से ड्रॉ होता है. बुक्स में ये सेक्शन कट करके इस सेक्शन को दिखा देते हैं, तो ये कहलाता है आपका ग्राफ ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट अंडर ग्रेविटी. तो स्टूडेंट इस तरह से हम ग्राफ भी अंडर ग्रेविटी ड्रॉ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स इसके बाद जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उसमें मैं लेके आऊंगा इसकी समरी, इसके की कॉन्सेप्ट और इससे बेस्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं. सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अच्छे से समझिए, पढ़िए. अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें. स्टूडेंट्स लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें. स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच.